යනුනේ ඔන්න ඉතින් අද දවසේදී අපි ඇවිල්ලින්නේ සුවිශේෂී කතාබහකට. ඉතින් මේක වෙනදා වගේ අපි කරන හින්දි භාෂා කතන පාඩමක් නං නෙවෙයි. නමුත් ඔබ අපෙන් අහලවල තියෙන ගැටලු වලට එක්තරා විදිහක පිළිතුරක් ලබා දෙන්නයි මේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපිත් එක්ක තර්ක විතර්ක කරනවා විශේෂයෙන්ම මැසේජ් හරහා එහෙම නැත්නම් මේ කමෙන්ට් හරහා ප්‍රශ්න පිට ප්‍රශ්න අහනවා. මොකක්ද මේ උර්දු භාෂාව? මේක කොහෙන් ආපු භාෂාවක්ද? එතකොට මේ උර්දු කියන භාෂාව කොයි විදිහටද උත්පන්න වුණේ? එහෙම නැත්නම් මේක නිර්මාණය වුණේ? ඒ වගේම අපි හින්දි භාෂාවෙන් කතා බහ කරනකොට උර්දු වචනයක් දෙකක් කතා බහ කරොතින් ඒක ලොකු අපරාධයක්ද? එහෙම නැත්නම් අපිට හින්දි භාෂාව වෙනමත් උර්දු භාෂාව වෙනමත් එකිනෙකට වෙන් කරලා තියන්න පුළුවන්ද? මෙන්න මේ වගේ නොයෙකුත් ප්‍රශ්න දෙකින් දෙකටම අපෙන් අහලවනවා. ඉතින් මේක TikTok වේවා, YouTube වේවා මේ හැම මාධ්‍යයක් ඔස්සේම අපෙන් දිනපතාම ඔබ කරන්නා වූ ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා බහ කරනකොට මම හිතුවා මම තනියෙන් ඔබට පිළිතුරක් ලබා දෙනවට වඩා මේ පිළිබඳව විශේෂඥ දැනුමක් තියෙන, ප්‍රාමාණික දැනුමක් තියෙන විද්වතෙක් හරහාම ඔබට අවශ්‍ය කරන්නා වූ දැනුම සහ මේ පිළිබඳව තොරතුරු ලබා දුන්නොතින් ඒක වඩාත් සාධාරණයි කියලා. ඉතින් ඔන්න ඒ සඳහා මට සුවිශේෂී අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒ මගේම ගුරුවරයා වන, මගේ උර්දු භාෂා ගුරුවරයා වන්නා වූ ඉන්දියාවේ දිල්ලි විශ්වවිද්‍යාලයේ මේ වන විටත් උර්දු භාෂා අධ්‍යනාංශයේ මහාචාර්යවරයෙක් වශයෙන් කටයුතු කරන්නා වූ මහාචාර්ය මුෂ්තාක් හාදරී මහතා සමග කතා බහක නිරත වෙන්නට. ඉතින් ඔබ මගෙන් මේ විදිහට විමසපු ගැටලු ප්‍රශ්න සියල්ලම මගේම ගුරුතුමා වන්නා වූ මගේ මහාචාර්යවරයා, මගේ ගුරු පියාණන් වන්නා වූ මුෂ්තාක් හාදරී ගුරු පියාණන්ගෙන් අහලා දැනගන්නට මට අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් අප හැමෝම දන්නවා මම ලංකාවේ හින්දි භාෂාව ඉගෙන ගන්නපු කෙනෙක් නෙවෙයි. එතකොට උර්දු භාෂාවත් මම මේ නොදැන එහෙම නැත්නම් එහෙන් මෙහෙන් කෑලි අල්ලගෙන භාවිතා කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. මම දිල්ලි විශ්වවිද්‍යාලයේ වසර ගණනාවක් ඉගෙන ගන්නපු කෙනෙක්. ඉතින් ඉන්දියාවේ දිල්ලි විශ්වවිද්‍යාලයේ හින්දි භාෂාව ප්‍රගුණ කරන සමයේදීම තමයි මට උර්දු භාෂා අධ්‍යනාංශයට ගිහිල්ලා එහිදී මේ උර්දු භාෂාව නිවැරදි ආකාරයට ඉගෙන ගන්නට අවකාශ ලැබුණේ. ඉතින් එහිදී මට මඟ පෙන්නපු මගේම ගුරු පියාණන් තමයි අද දවසේදී ඔබේ ප්‍රශ්න ගැටළු වලට මේ ආකාරයට පිළිතුරු සපයන්නේ. මං හිතන්නේ මේක මගේ ජීවිතයේ සුවිශේෂී දිනයක්. ඒකට හේතුව මීට වසර ගණනාවකට කලින් ඉන්දියාවේ දිල්ලි විශ්වවිද්‍යාලයේ උර්දු භාෂා අධ්‍යනාංශයේ උර්දු භාෂාව ඉගෙන ගන්න කාලයේදී මං කිසිම දවසක හිතුවේ නෑ ලංකාවට ආවට පස්සේ මේ විදිහට YouTube නාලිකාවක් නිර්මාණය කරાવી. ඒ වගේම මේ නිර්මාණය කරන නාලිකාව හරහා හින්දි උර්දු කියනා වූ භාෂා ද්විත්වයම ඔබට සමීප කරන්නට මේ විදිහට උත්සාහ දරාවි කියලා. නමුත් ඉතින් මං නිර්මාණය කරපු මෙම නාලිකාවටම මගේම ගුරු පියාණන් වන්නා වූ මහාචාර්ය මුෂ්තාක් හාදරී ගුරු පියාණන්ව මේ විදිහට ආරාධනා කළා කැඳවාගෙන එන්නත් එතුමාගේ මෙම දැනුම් සම්භාරය ශ්‍රී ලංකා වාසී ඔබ සමග මේ ආකාරයට බෙදා හදා ගන්න ලැබේවි කියන එක මම ඇත්තටම හිතුවේ නෑ. ඉතින් ඒක නිසා මේක මගේ ජීවිතයේ සුවිශේෂී සන්දස්ථානයක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපි යමු මේ වටිනා කියන කතා බහට. नमस्कार आप सभी को और आदाब और आज हमारे साथ एक बहुत बड़े शख्सियत बैठे हैं जो कि पूरे हिंदुस्तान में और उर्दू की दुनिया में तो सबको पता ही है, लेकिन श्रीलंका में जितने भी लोग मौजूद हैं उनको हमारे प्रोफेसर साहब के बारे में इतना नहीं पता. लेकिन आज हमारे साथ जो है वो है प्रोफेसर मुश्ताक खादरी सर, जो कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट में उर्दू भाषा को पढ़ा रहे हैं. तो सबसे पहले हम आपका स्वागत करना चाहते हैं सर हमारे इंग्लिश ऑफ यूट्यूब चैनल में. बहुत बहुत शुक्रिया, आपका तहे दिल से स्वागत है सर. श्रीलंका वालों के लिए आपने अपना समय, कीमती समय निकाला और उसके लिए हम आभारी हैं सर आपके. सबसे पहले सर हम आप ही से जानना चाहते हैं कि आपके बारे में, क्योंकि श्रीलंका के जो जितने भी उर्दू प्रेमी हैं उनको आपके बारे में इतना जानकारी नहीं है सर. तो हम आप ही से जानना चाहते हैं आपके बारे में, प्रोफेसर मुश्ताक खादरी के बारे में
आप ही से जानना चाहते हैं सर। 2 लफ्ज़ आप अपने बारे में अगर बता सकते हैं तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा हमारे लिए। सबसे पहले मैं शशि जी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे अ, श्रीलंकन जो लिटरेरी सोसाइटी है, ख़ास करके उर्दू और हिंदी को लेकर के उन लोगों से मुझे मिलने का एक मौका, एक जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, एक अवसर दिया। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, मैं आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम मुश्ताक कादरी है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में उर्दू का टीचर हूँ, उर्दू का उस्ताद हूँ। और हिंदी में हम कहें तो उर्दू का अध्यापक हूँ। और वहाँ मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 18 ईयर्स हो गए उर्दू पढ़ाते हुए। 18 ईयर। उससे पहले मैं जो हमारा नेटिव स्टेट है जम्मू कश्मीर, वहाँ मैं कॉलेज विभाग में था, वहाँ भी उर्दू पढ़ाता था। तो कुल मिलाकर 20 ईयर्स से ज़्यादा, 20 साल से ज़्यादा हो गया मुझे उर्दू पढ़ाते हुए। और मैं गौरव करता हूँ इस बात के लिए कि शशि जी मुझे आप जैसे स्टूडेंट मिले और जो उर्दू को लेकर के या सारी भाषाओं को लेकर के इतने चिंतित हैं और इतनी सोच विचार करते हैं कि जो हमने सीखा, जो हमने पढ़ा, वो हम अपनी कंट्री को सर्व करें और हमारे कंट्री वाले जो है वो लैंग्वेजेस के बारे में, ज़बानों के बारे में, खास करके उर्दू के बारे में जानें। तो ये आपकी बहुत बड़ी कोशिश है और मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी इस तरह के जो कार्यक्रम हैं उर्दू को लेकर के, हिंदी को लेकर के, तो उसको जारी रखेंगे। मैं आपका बहुत एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ। सर बहुत-बहुत शुक्रिया। आज मैं फ़क्र के साथ कह सकती हूँ कि ये हमारे सर हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं और हम एक शागिर्द हैं आपके सामने। तो हम आज जहाँ पे भी हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उर्दू को लेके, तो फिर वो सब आप ही लोगों के प्यार की वजह से ही सर। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। दोबारा मैं आपका यही कहने पे बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ सर कि ये उर्दू की दुनिया में आपने कदम कैसे रखा? आपका कैसे आना हुआ ये उर्दू को लेकर इतना सारा काम करना? ये सब शुरुआत कहाँ से हुआ सर आपका? बेसिकली जब मैं स्कूलिंग कर रहा था, जी। तब से ही मुझे जब इस ज़बान को पढ़ने का मौका मिला, तो इस ज़बान की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत जो है वो ये है कि ये अपने ओर खींचती है। और ख़ास करके जो आप सब जो सुनने वाले हैं, आपको किसी भी भाषा में जो पोइट्री होती है, शायरी होती है, जी। तो वो इंसान को अपनी ओर करती है। तो मैंने जब उर्दू की शायरी को पढ़ना शुरू किया और उर्दू के जो बड़े पोइट्स हैं, बड़े राइटर्स हैं, उनको पढ़ना शुरू किया स्कूलिंग से, तो मुझे लगा कि ये एक बड़ी भाषा है और इस भाषा में आप बहुत कुछ कर सकते हैं और अपनी बात अपने जो लिसनर हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। फिर मुझे लगा कि जो हमारी कंट्री है हिंदुस्तान, क्योंकि उर्दू जो है इसकी जो पैदाइश हुई है वो हिंदुस्तान में हुई है और इसको इसीलिए बोलते हैं कि ये खालिस हिंदुस्तानी ज़बान है। इसमें कहीं बाहर का कुछ नहीं है, तो यहाँ ही पली बड़ी है ये। हम जो दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली एक कैपिटल है और दिल्ली एक ऐसा कैपिटल है कि इसके आस-पास के जो एरियाज़ हैं, आस-पास की जो जगह हैं, यहाँ पर जो उर्दू भाषा है इसका जन्म हुआ। और इसका जन्म जो है वो 2, 3, 4 ज़बानों को लेकर के, ख़ास करके जिस ज़बान को हम मदर ऑफ लैंग्वेजेस बोलते हैं, संस्कृत। तो ये संस्कृत और अरबिक और पर्शियन और खड़ी बोली, ब्रिज भाषा, ये जो दिल्ली में और दिल्ली के आसपास जो बोलियाँ बोली जाती थी, उन बोलियों का एक ये मिक्सचर है। और ये मिक्सचर ऐसा मिक्सचर है कि जब ये इस मिक्सचर को सजा करके एक बुकेज की शक्ल में जब सामने रखा गया, एक फूलों की शक्ल में जब सामने रखा गया, तो जो बुकेज है उसमें कई तरह के फूल होते हैं। जी। तो ये उर्दू ज़बान, जो उर्दू भाषा है, ये भी
उन फूलों की तरह है कि जो बुके के अंदर फूल रखे जाते हैं बहुत सारे, फिर वो एक बुके बनता है। तो उर्दू भाषा की भी वही बात है कि उर्दू भाषा उस बुके की तरह है कि हर रंग के फूल है इसमें कोई कास्ट नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई कंट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप ये देखिए कि जो भाषा बोलता है वो वो इस भाषा को अपना समझता है। आप श्रीलंका से हैं तो आपको लगता है कि हमारा नेबर इंडिया है, और इंडिया और श्रीलंका में कोई खास फर्क है नहीं। हमारी जो कई तरह की जो का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है हमारा, वो मिलता जुलता है। और हम लोग रिच कल्चर के जो है मालिक हैं, और रिच कल्चर में हम पले बड़े हैं। तो रिच कल्चर में जब हम पले बड़े हैं तो हमारी कुछ ज़बानें भी हैं, कुछ लैंग्वेजेस भी। तो उन ज़बानों में उर्दू ज़बान का जो एक मकाम है, मर्तबा है, उसका एक बड़ा मकाम है। और वो हिंदी के साथ कभी भी उसने टकराव नहीं किया, बल्कि हिंदी के साथ मतलब हमारे यहाँ उर्दू के लिए ये बोला जाता है कि उर्दू और हिंदी ये दो सगी बहनें हैं, और इनका रिश्ता ऐसा है कि आप इसको कभी अलग नहीं कर सकते। हम जिस भाषा में, जिस जबान में बात कर रहे हैं, सरल, वो हिंदी भी नहीं है, वो उर्दू भी नहीं है। हम इसको हिंदुस्तानी बोलते हैं, हम इसको श्रीलंकन भी बोल सकते हैं, इसलिए कि श्रीलंका में भी बहुत सारे लोग बहुत सरल भाषा का इस्तेमाल करते होंगे, आसान भाषा का इस्तेमाल करते होंगे, जो आपकी सोसाइटी में या आपके समाज में उसको अच्छा समझते होंगे कि भाई ये बहुत भारी भरकम जो वर्डिंग है, वो लफ्ज़ है, वर्ड है, ये शब्दावली जो है, वो इतनी हार्ड नहीं, बल्कि हर एक के मन में समा जाने वाली भाषा है। तो उर्दू भाषा के साथ मैं इस तरीके से जुड़ा कि इस भाषा में बगैर किसी रिलीजन के और बगैर किसी कास्ट के हर एक को अपने पास खींचा है, हर एक को गले लगाया है। तो मुझे ये अच्छा लगा कि जब इस भगवान कह लो, खुदा कह लो, या ईश्वर कह लो, कुछ भी कह लो, तो उसने जब सारी मखलूक को, सारी दृष्टि को पैदा किया, तो वो इसमें नहीं कहता कि भाई ये आदमी श्रीलंका का है, ये आदमी इंडिया का है, ये आदमी कहीं और का है। तो हम लोग जो भाषाओं को और जो रिलीजन को और जो कास्टें में बढ़ गए हैं, तो मुझे लगता है कि उर्दू भाषा का सबसे बड़ा जो वो है, वो ये है कि ये आपस में जोड़ती है, जी। आपस में एक दूसरे को मिलाती है। जैसे इसके शब्द मिलते हैं, वैसे ही ये हर इंसान को एक दूसरे के साथ जोड़ती है, मिलाती है। तो मुझे इसलिए ये भाषा अच्छी लगी, तो मैंने इस भाषा को सीखा, पढ़ा, और मैं इसमें आगे बढ़ा, मैं टीचर बना। तो आज जो कुछ भी हूँ मैं इसी भाषा की वजह से हूँ। और मैं सारी भाषाओं की, जो आपकी श्रीलंकन भाषा है कुछ कुछ, वो भी मुझे बहुत प्यारी लगती हैं जब कोई बोलता है, इसलिए कि बोलियाँ तो इंसानों की बोलियाँ होती है ना, वो कोई पीढ़ियों की बोलियाँ नहीं होती। तो वो जो इंसान बोलता है वो आपको बिल्कुल मन से बोलता है, वो आपको बिल्कुल बहुत दिल के करीब से बोलता है। तो मुझे लगता है कि उर्दू हम लोगों के दिल के बहुत करीब है। हम जब इसका कोई शेर पढ़ते हैं तो हमें कितना अच्छा लगता है। जी। जैसे मैं आपको बताऊं कि गालिब का शेर है कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। कितना आसान है कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। और मेरे नाम के साथ ये आता है कि हम हैं मुश्ताक वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। और हमको उनसे है वफा की उम्मीद। ये बहुत अच्छा शेर है। हमको है उनसे वफा की उम्मीद, जो नहीं जानते कि वफा क्या है। तो ये गालिब है, फिर इकबाल है, फिर और जो जितने हमारे राइटर्स हैं, वो सिर्फ ये नहीं है कि उर्दू वाला राइटर्स जो है सिर्फ मुस्लिम होगा, बल्कि इसमें सारे, जितना आपने भी पढ़ा है कि इसमें सारे रिलीजन के राइटर्स, क्रिश्चियन भी हैं इसमें, हिंदूज भी हैं इसमें, सिख भी हैं, जैसे आपने देवी के बारे में पढ़ा, चकबस्त के बारे में पढ़ा, आपने जैसे त्रिलोकचंद नेहरू में उनके बारे में पढ़ा। ये सारे जितने भी हैं, प्रेमचंद, आप जब शॉर्ट स्टोरी पढ़ते हैं तो प्रेमचंद को पढ़ते हैं। तो हम सारे लोग गाँव के रहने वाले, तो आप देखिए कि प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरी जो है जब आप पढ़ेंगे
तो ऐसा लगेगा कि हम अपने गांव में घूम रहे हैं, हम अपने शहर में घूम रहे हैं। वो प्रेमचंद बात करता है एक मजदूर की, जो लेबर क्लास आदमी है, उसके बारे में कहता है कि भाई आप उसकी जो मजदूरी है, आप जो इसका पैसा जो काम करता है वो, तो उसका जो पसीना है उसके सूखने से पहले उसको दे दो। और सारी जिंदगी जो प्रोग्रेसिव मोमेंट के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, आपको पता भी है, तो प्रोग्रेसिव मोमेंट्स के साथ वो जुड़े हुए थे ये सारे राइटर्स। तो इन राइटर्स ने एक आम आदमी की बात की, तो ये उर्दू ही बात कर सकती है, हिंदी ही बात कर सकती है, यही भाषाएं जो है वो एक आम आदमी के बारे में सोच सकती हैं। आप ठीक है, इंग्लिश की है, लिटरेचर है, तो लिटरेचर कोई भी हो, जी। वो बिल्कुल ऐसा है कि वो दिल को छूने वाले चीजें होती हैं, लिटरेचर कोई भी हो। शर्त ये है कि आप उसको सीखें, आप उसको पढ़ें और आप उसको जानें। जब आपको उससे सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी डेप्थ क्या है, इसकी गहराई क्या है। तो उर्दू ज़ुबान में ये सब कुछ है कि उर्दू ज़ुबान आपको और हमें एक साथ मिलाती है, एक साथ आने की दावत देती है, और इसकी जो शब्दाबंदी है, शायरी है, पोइट्री है, तो वो आदमियों को बेइंतहा अपनी तरफ जो है वो राग़िब करती है। तो मुझे लगता है कि उर्दू ज़ुबान को सीखने का जो सबसे बड़ा मेरा वो रहा, वो ये रहा। और एक ये ज़ुबान ये भी बात करती है कि कोई बॉर्डर नहीं, आप बॉर्डर के उस पार है, आप दूसरी कंट्री में हो, हम दूसरी कंट्री से बात कर रहे हैं, लेकिन ये ज़ुबान हमें, इस ज़ुबान का प्यार है कि जो हम और आप बात कर रहे हैं, इसका वो है। तो ये कहा जाता है ना, उर्दू को जब बोलता है तो कानों में शहद शहद जो है ना वो घुलता है। मधुमक्खी की तरह ये ज़ुबान जो है इंसान की नस-नस में, रग-रग में जो है वो दौड़ती है, खून की तरह दौड़ती है। तो ये उर्दू का कमाल है। और उर्दू ने कभी भी ये नहीं चाहा कि मेरे पास या मेरे वर्ल्ड में या मेरी शब्दावली में कोई दूसरी लैंग्वेज ना आए, कोई दूसरी भाषा ना आए। उसने अपने जो जो खिड़कियाँ हैं वो खोल के रखी कि बाहर से जो हवा आ रही है, हवा से मेरी मुराद ये है कि जिस ज़ुबान का जो कुछ हमें मिल रहा है, हम लोग उसको एक्सेप्ट करें, हम लोग उसको हासिल करें। तो उर्दू ने कई ज़ुबानों का जो इत्तेसाब है, या उसको आप ये कह लीजिए कि कई ज़ुबानों का जो मिक्सचर है, वो आपके साथ आने दिया, उसको रोका नहीं। इसीलिए उर्दू को कहा जाता है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान की ज़ुबान नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड की भाषा है। ये पूरे एक पूरे मुल्कों की भाषा है, ये कई मुल्कों की भाषा है। तो ये भाषा दूसरे मुल्क में इसीलिए ट्रांसफर होती है कि उसके अंदर एक ताकत होती है दूसरों को कुछ बताने की। तो ये ताकत उर्दू के अंदर है, जो कभी हिंदी के साथ झगड़ा नहीं किया, कभी तमिल के साथ झगड़ा नहीं किया, कभी दूसरी जगह इंग्लिश के साथ झगड़ा नहीं किया, कभी पर्शियन के साथ नहीं किया, अरबिक के साथ नहीं किया, बल्कि इन सारी भाषाओं से अपने साथ आने दिया प्यार के साथ, और इनसे बहुत कुछ हासिल किया। तो आज ये मुझे लग रहा है कि वो वर्ल्ड में इस भाषा को जो इतना प्यार मिल रहा है, और आप भी इतना प्यार दे रही हैं शशि जी, तो ये इसकी एक अपनी शब्दावली है और एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, जिसको हम कभी नकार नहीं सकते। जी। जी, सर, जैसे अभी आपने कहा था कि उर्दू की जो उत्पत्ति है वो हिंदुस्तान में ही हुई है, और अभी पूरे दुनिया में ये उर्दू ज़ुबान जो है वो बोली जाती है। तो मुझे एक सवाल मेरे मन में ये उठता है कि हिंदी भाषा और उर्दू भाषा को लेके उन दोनों में जो फ़र्क है, जो अंतर है, उस चीज़ को आप किसी को कैसे समझा देंगे? क्योंकि इधर जितने भी लोग हिंदी को लेकर या उर्दू को लेकर काम कर रहे हैं, सब लोग इस बात को लेकर परेशान हैं कि उर्दू और हिंदी, इन दोनों के जो बीच में जो अंतर है, उस चीज़ को हम कैसे समझें? इसका अब इसका जो इसके बारे में दोनों मतलब लैंग्वेजेस के बारे में हम कैसे समझें? इस बात को लेके अगर आप थोड़ा बहुत बात करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा सर। एक्चुअली इसलिए आपने देखा होगा कि दोनों ज़बानों में ज़्यादा अंतर नहीं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कि इसकी जो लिपि है उर्दू भाषा की, वो लिपि जो है वो अरबिक और पर्शियन से, जी। और वो सीधे मतलब राइट से लिखी जाती है, ठीक है। और हिंदी जो है वो आपको मालूम है कि वो
लेफ्ट की तरफ से शुरू की जाती है। जी। तो मुझे लगता है कि इसकी जो सबसे बड़ी खूबसूरती है उर्दू की, वो इसकी लिपि है। आप इसकी लिपि को अलग कर दोगे, हालांकि मैं आपको बताता हूँ कि ये अभी बहुत सोशल मीडिया का ज़माना है और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। हम लोग अब थोड़ा सा उर्दू वाले और हिंदी वाले ये कर रहे हैं कि खास करके उर्दू भाषा जो है, हिंदी क्योंकि बहुत सारे स्टेट की जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, हिंदी को थोड़ा इस टाइम ज़्यादा एज है। तो उर्दू वाले जो हैं वो ये कर रहे हैं कि वो देवनागरी जो है, जो हिंदी की लिपि है, तो हिंदी की लिपि में उर्दू के शेरों को लिख रहे हैं और सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। इसका लाभ जो है वो उर्दू को हो रहा है। वो शब्द तो उर्दू के हैं, लेकिन वो जो लिपि है, जो राइटिंग है, वो हम यूज कर रहे हैं हिंदी की। तो इससे उर्दू का एक विस्तार हो रहा है। लेकिन ज्यादा हम लोग कोशिश ये करते हैं कि उर्दू सीखना तो मुश्किल नहीं है, इसकी लिपि को सीखना। तो अगर लिपि सीख ली जाए तो ये ज्यादा बेटर है। और अगर आपको कोई गालिब का, इकबाल का या किसी भी उर्दू शायर का शेर अच्छा लगता है, तो आप किसी हिंदी भाषी को वो चीज ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप उसको हिंदी लिपि में लिख सकते हैं और लिखा जा रहा है। इवन के रिलीजन की भी जब आप बात करते हैं, तो कुरान शरीफ, जो कुरान है मुस्लिम की किताब है, तो उस मुस्लिम की किताब को भी हिंदी में ट्रांसलेट किया जा रहा है और वो ट्रांसलेशन बहुत हाई लेवल पर उसको पढ़ा जा रहा है। इवन के जो हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, मस्जिद है, मंदिर है या और चीज़ें हैं, मंदिर में तो हिंदी लिखी जाती है, लेकिन आप मस्जिद में भी हिंदी का जो है वो चलन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो उर्दू नहीं जानते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि झगड़ा तो कोई नहीं, वैसे तो दोनों लैंग्वेज को सीखना चाहिए। अगर दोनों को नहीं सीख रहे हैं आप, तो कम से कम शब्दावली दोनों जुबानों की, जिसको मैंने पहले आपसे कहा कि ये सरल भाषा हम उर्दू और हिंदी को लेकर के करेंगे, तो दोनों भाषाएं आपस में ऐसे लगेगा हमें कि दोनों भाषाओं में कोई फर्क नहीं। लेकिन जब हम भारी भरकम शब्दावली यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हमें इनका फर्क समझ में आएगा। तो हमें भारी भरकम शब्दावली यूज करनी नहीं है। हम भारी भरकम शब्दावली यूज करेंगे तो हमारे जो स्टूडेंट हैं या जो हमारे रीडर हैं, वो हमें नहीं पढ़ेंगे, वो पसंद नहीं करेंगे। आप गूगल पे देखिए, सर्च कीजिए कि आजकल सारे जो राइटर हैं या सारे जो लैंग्वेज को सीखने वाले लोग हैं, वो चाहते हैं कि सरल भाषा में बात हो ताकि हमें उसका पता चल सके। तो मैं समझता हूँ कि हिंदी और उर्दू अगर दोनों सीखी जाए तो ये बहुत खूबसूरत बात है। और उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर यही है कि जब हम भारी वर्डिंग यूज करेंगे तो हिंदी की क्या कहते हैं, संस्कृत के वर्ड आ जाएंगे, उसमें हम लोग अपने लिखकर को, अपने रीडर्स को समझा नहीं पाएंगे। उर्दू में अगर आप पर्शियन के और अरबी को बड़ी भारी भाषा और बड़ी शब्दावली यूज करेंगे, तो हमारे जो उर्दू वाले भी रीडर हैं वो भी नहीं पढ़ पाएंगे, हिंदी वाले क्या। तो जहाँ काम चलाना हो सच्ची जी, तो मैं समझता हूँ कि अगर उर्दू की लिपि से काम ना चल रहा हो, तो आप देवनागरी में उस चीज़ को लिख सकते हैं और ये लिखा जा रहा है। तो सोशल मीडिया में इसका यूज हो रहा है। तो और वैसे भी आप चैट जीपीटी है, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, बहुत कुछ आ गया है। तो मुझे लग रहा है जबानों को हम जितना बढ़ावा देना चाहेंगे, जबानें बढ़ सकती हैं। इसमें शर्त ये है कि हमारा दिल बड़ा होना चाहिए। हर भाषा के लिए दिल बड़ा होना चाहिए। और भाषा तो इसीलिए बोलते हैं कि जो आपकी माँ बोली है, जो आपकी मदर टंग है, मदर लैंग्वेज है, वो आदमी आपको और कितनी अच्छी लगती है, फिर वो भी तो कहीं से आई है। तो ये वाली जो लैंग्वेज सारी आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं, एक दूसरे को मिलाती हैं। कोई ऐसी लैंग्वेज हो जो टुकड़े करे, बांटे, एक दूसरे को अलग अलग करे,
तो मेरा तो यही ख्याल है कि उर्दू और हिंदी को इस तरीके से चलाया जाए कि कोई ये ना समझे कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो ये ना समझे कि हम उर्दू में बात जी सर, क्या बात है सर, दिल खुश हो गया आपकी बातें सुन के। कर रहे हैं। सर एक और बात ये है कि आपने अभी बोला कि उर्दू जो है वो पूरी दुनिया की ज़ुबान बन गई है। तो फिर जैसे मैं आई थी वहाँ आप लोगों के पास उर्दू सीखने के लिए, वैसे ही मतलब गैर मुल्की लोग तो आते ही होंगे आज भी उर्दू सीखने के लिए। आपका तो वैसे भी आते हैं, तजुर्बा बिल्कुल। है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ इतने सालों से आप काम कर रहे हैं। तो आप हमें थोड़ा-सा बताइए कि कहाँ-कहाँ से लोग आ जाते हैं उर्दू को ढूँढते-ढूँढते और क्यों आते हैं ये लोग मतलब किन-किन कंट्रीज़ किन-किन मुल्कों से लोग आते हैं आज भी? हमारे यहाँ शशि जी श्रीलंकन भी आते हैं, और ये श्रीलंकन जो हैं वो, जैसे आप आए जिस ईयर में आप आए, तो उसके 1-2 साल बाद और भी स्टूडेंट आ जाते हैं, और वो स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी के और कोर्सेज में होते हैं, और कोर्सेज में जब वो आते हैं तो उनको एक सब्जेक्ट ऐसा पढ़ना होता है लैंग्वेज का, हिंदी या उर्दू, तो उनको ऑप्ट करना पड़ता है। अभी जो हमारी एनएपी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके उसको लेकर के, तो वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फॉरेन के बच्चे उर्दू तो चूज करते हैं, और वो एक सब्जेक्ट के तौर पर उर्दू पढ़ते हैं। वो जैसे आप आए थे डिप्लोमा करने के लिए या सब्जेक्ट कोर्स एडवांस डिप्लोमा, ऐसे भी आते हैं, लेकिन जो रेगुलर कोर्सेज है हमारे यहाँ, उन कोर्सेज में भी बच्चे आते हैं, और बहुत सारे कंट्रीज के आते हैं, मतलब बांग्लादेश भी है उसमें, उसमें श्रीलंका है, उसमें आपका अरब अमारात है, जी। उसमें आपका सऊदी अरबिया है, उसमें आपका ये वाले जो रशियन कंट्रीज हैं, खास करके रशिया के लोग भी आते हैं, टर्की के लोग आते हैं, बहुत सारी कंट्रीज के लोग आते हैं, और ये अपने इंग्लैंड से भी आते हैं, लंदन से भी आते हैं, अंग्रेज लोग भी आते हैं, वो भी सीखते हैं, तो सारे लोग सीखते हैं, इसका कोई मैं समझता हूँ कि एक कंट्री का नहीं, और उसमें एक्सपोजर हम लोगों का भी बढ़ता है। जैसे आपसे बात कर रहे हैं हम, शशि कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, और वो उसका एडमिशन हिंदी में हुआ था, लेकिन उसका उर्दू भाषा को चुना, तो उर्दू हिंदी के साथ साथ उसने जब उर्दू भाषा के साथ अपना रिश्ता बनाया या अपने रिलेशन बनाए, तो शशि को श्रीलंका में भी बहुत सारे लोग लाइक करने लगे, और शशि से पूछने लगे। तो ऐसे ही जैसे हमारे एक शायर हैं, वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जाने की मंजिल, मगर लोग साथ साथ थे और कारवां बनता था। लेकिन कारवां गेट टुगेदर से जो एक चीज बनती है तो आगे तक चली जाती है। मैं जी। समझता हूँ कि इसीलिए मैंने कहा कि उर्दू जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है, और आप इसको देखेंगे कि हर जगह जो है इसके बोलने वाले, इसके जानने वाले, इसको प्यार करने वाले लोग हर जगह मिलते हर जगह पूरी दुनिया में जैसे कि हम श्रीलंका में बैठ के हैं। आपके उर्दू को बिल्कुल। लेके इतना कुछ काम जो कर रहे हैं, इतना प्यार जो कर रहे हैं और बहुत सारे लोग श्रीलंका में भी हैं जो कि उर्दू को लेके दीवाने हो चुके हैं, लेकिन उनको ये रास्ता नहीं पता शायद कि उनको ये भी नहीं पता कि ये हिंदी है कि उर्दू है, सीखना है तो फिर कैसे सीखना चाहिए। तो मुझे लगा कि आप ही से बात किया जाए तो फिर ये सारे मसलों का हल हम निकाल सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये जो भी जितना भी आपने जानकारी दिया है उन सब चीज़ों को सुन के। सर मुझे आपसे एक और सवाल है, जैसे कि मुझे पता है कि आप ट्रांसलेशन को लेकर काम कर रहे हैं और पिछले साल आपने एक किताब भी लॉन्च किया है वो ट्रांसलेशन को लेके। थोड़ा बहुत उसके बारे में भी हमें बताइए सर कि आपने उर्दू को लेकर ट्रांसलेशन को लेकर जो काम जो कर रहे हैं, उसका जो महत्व है थोड़ा-सा वो भी समझाएँगे तो फिर बढ़िया रहेगा सर। बिल्कुल। देखिए, जो ट्रांसलेशन है वो हम सब जानते हैं कि वो एक ब्रिज है। जी। उस ब्रिज की वजह से हम दूसरी ओर जाते हैं, और उर्दू ज़ुबान ने जो इतनी बड़ी ऊँचाई हासिल की, तो उसमें ट्रांसलेशन का बड़ा योगदान है, और ट्रांसलेशन ने ही उर्दू को इतनी बड़ी लैंग्वेज बनाया, इतनी बड़ी ज़ुबान बनाई। मैंने ट्रांसलेशन जो है उसकी जो एक ब्रीफ हिस्ट्री है कि किस तरीके से ट्रांसलेशन आया, और कैसे-कैसे ट्रांसलेशन ने उर्दू ज़ुबान को जो है वो इतनी बड़ी ज़ुबान बना दी।
तो मैं समझता हूँ कि जब तक जो हिंदी में जिसको हम लोग कहते हैं कि आदान प्रदान जी। के लेन देन है, तो जैसे व्यापार है, बिजनेस है, ऐसे ही जबानों का भी बिजनेस है, लैंग्वेज का भी बिजनेस है। तो ट्रांसलेशन जो है लैंग्वेज बिजनेस का एक तो बड़ा आइडिया है। आप इसको नकार नहीं सकते हैं कि जो भी बड़ी ज़बानें या बड़ी लैंग्वेज बनी हैं आज तक, उसमें ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे जैसे मैं आपको कहूँ कि कोई अरबिक बोलता है और साथ में हम हिंदुस्तानी बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, तो देश में जो हम लोगों की जो वार्तालाप होता है, जो बातचीत होती है, इसको आप तक पहुँचाने के लिए और आपके वार्तालाप को मुझ तक पहुँचाने के लिए बीच में एक शख्स बैठता है, जो आपकी ज़ुबान को भी जानता है और मेरी ज़ुबान को भी जानता है। तो ये एक ऐसा शख्स होता है कि जो दोनों ज़ुबानों के ऊपर बड़ा परफेक्ट होता है। ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहला जो उसूल है, जो पहली मेथोडोलॉजी है, वो यही है कि ट्रांसलेटर दोनों ज़ुबानों को बहुत अच्छे से जानता हो, ताकि वो आपकी ज़ुबान को गलत करके मुझे ना बताए। जब आप मुझे बताएगा वो गलत करके जो आप कह रहे हैं, तो वो ज़ुबान की कमज़ोरी होगी, वो ज़ुबान को कमज़ोर करने की एक बात होगी। तो ये जो ट्रांसलेशन है, अब तमिल में इतनी ट्रांसलेशन है, मैं दूसरी लैंग्वेज से पढ़ता हूँ, अरबिक में है, पर्शियन में है, हिंदी, इवन हिंदी की है। तो आप हिंदी में भी देखते हैं कि जितनी भी चीज़ें उर्दू की ट्रांसलेट होकर के आपके हिंदी में आई हैं, तो बहुत सारे पॉइंट की है, उनकी पॉइंट की है, तो वो ट्रांसलेशन नहीं होती, तो हम लोग उन लोगों को नहीं पढ़ सकते, हम लोग उनकी राइटिंग को नहीं देख सकते थे। हम कैसे, कोई हिंदी वाला जो उर्दू नहीं जानता, तो वो पढ़ना चाहता है उर्दू को, तो वो कैसे पढ़ेगा? वो हम अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। वो हमारी शायरी को, वो हमारी पोइट्री को, वो हमारी प्रोज को आसानी के साथ हिंदी में पढ़ता है। तो ट्रांसलेशन ने तो पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा तहलका मचाया है, और आज भी आप गूगल में या इंटरनेट को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग ट्रांसलेट करते हैं चीज़ों, या जीपीटी से हो या किसी भी दूसरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो ट्रांसलेशन तो एक ऐसा आर्ट है कि जिस आर्ट ने दुनिया के अंदर बहुत बड़ा काम किया है, और मुझे लग रहा है कि खास करके ज़बानों के अंदर, लैंग्वेजेस के अंदर उसका ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए हमारी ज़ुबानें बड़ी बनी हैं कि ट्रांसलेशन मौजूद थी। दूसरा आदमी जब हमारी बात को जानता ही नहीं, पढ़ ही नहीं सकता, तो हम अपनी बात को ट्रांसलेटर से ही जरिए, उसी के माध्यम से उसके पास पहुँचाएंगे। जब वो हमारी बात को पढ़ेगा, तो उसको लगेगा कि इस ज़बान के अंदर, इस लैंग्वेज के अंदर क्या बन जाए। तो हमारे जो रीडर्स हैं, या हमारे जो लिस्टर हैं, हमारे जो राइटर हैं, उनका एक हल्का बढ़ता है, उनका ग्रुप बढ़ता है, तो ज़बान की ज़्यादा डेवलप होती है। मैं तो ये समझता हूँ कि ट्रांसलेशन एक ऐसा आर्ट है कि जिस आर्ट में दुनिया के अंदर सारी ज़बानों का बहुत भला किया है, और ख़ास करके मैं समझता हूँ कि उर्दू का तो बहुत ही भला किया। ये सारा कुछ जो उर्दू में आया, ये ट्रांसलेशन से ही आया, जी। और इतना बड़ा, क्योंकि हिंदी, संस्कृत जिसको मैंने आपको मदर ऑफ लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं, तो सारी ज़बानों की माँ है वो, तो वो सारी चीज़ें जितनी हमारी ज़बानों के अंदर वो तो ट्रांसलेट होकर ही है। असल लिपि में हमने उनको नहीं पढ़ा, ट्रांसलेशन के ही माध्यम से पढ़ा, और ट्रांसलेशन भी ऐसी होनी चाहिए, उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि उसको, उसके लिए कहा जाता है कि ट्रांसलेशन एक ऐसा आर्ट है कि जिसको आप बगैर दूसरी ज़बान के सीखे हुए और समझे हुए नहीं कर सकते। ये मक्खी पर मक्खी मारने का काम नहीं है, बल्कि एक भी कंप्लीट आर्ट है, और इस कंप्लीट आर्ट की वजह से आज बड़ी बड़ी ज़बानें जो है दुनिया के अर्थ में। जी सर, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब कुछ जान के, बहुत खुशी हो रही है मुझे। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पहले जब मैं आपके पास बैठ के जब मैं उर्दू पढ़ा करती थी, तब जैसे ही, मतलब वही फीलिंग आज भी मुझे वही लग रहा है सर। आपके सामने बैठ के आज भी कुछ ना कुछ पढ़ने का मौका मुझे मिल रहा है।
तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं है सर। सर एक आखिरी सवाल, जी, जैसे अभी आपको दिख रहा है जी, जी। उर्दू प्रेमी तो इधर है ही, जो कि ढूँढ रहे हैं, लफ्ज़ों को ढूँढ रहे हैं, सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। हमारी तरफ से हम थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आपसे अभी रूबरू कराने की कोशिश करा रहे हैं, जैसे थोड़े बहुत वीडियोज़ बना के उनकी मदद करने की, अपनी तरफ से थोड़ा बहुत मदद कर रहे हैं। तो आप अपनी तरफ से कुछ बताइए सर कि यहाँ के जो उर्दू प्रेमियों के लिए, अगर वो लोग आपको ढूँढते-ढूँढते, उर्दू को ढूँढते-ढूँढते अगर आना चाहते हैं, तो क्या आप लोग स्वागत करना चाह रहे हैं या क्या क्या कहना चाह रहे हैं हाँ, हम उर्दू हम प्रेमियों लोग के लिए? हम उन सब प्रेमियों को वेलकम करते हैं और ये आशा करते हैं कि जो उर्दू को सीखने के लिए इतने उत्सुक हैं और इतना उसके साथ प्यार करते हैं, वो कभी भी आप जब भी चाहेंगे हम उनसे बात भी करेंगे और अगर वो इधर आना चाहेंगे उर्दू सीखने के लिए उर्दू भाषा को, तो हम यहाँ पर भी हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि वो हमारे यहाँ आए और हम उनको अकोमोडेट करेंगे, उनका वेलकम करेंगे कि आप आइए। और जब वो आएँगे तो आप जैसे हज़ारों लोग उर्दू के पैदा हो जाएँगे और फिर इस भाषा का इस तरीके से विस्तार होगा कि श्रीलंका में भी उर्दू का बोलबाला हो जाएगा। तो हमारे लायक अब कभी भी कुछ होगा तो हम आपके जितने भी ऑडियंस हैं, सुनने वाले हैं, उन सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि शशि जी जब भी उर्दू की बात करेंगी तो उर्दू के बारे में बताएँगी, पूछेंगी और ये कहेंगी कि श्रीलंकन उर्दू को सीखना चाहते हैं, तो हम किसी भी वक़्त एवरी टाइम जो है उनके लिए हाज़िर हैं। तो उनको सिखाने के लिए वेलकम करेंगे, उनको इस दुनिया में आने के लिए कहेंगे कि आप ज़रूर आइए, उर्दू को सीखिए, उर्दू को पढ़िए और फिर बताइए कि उर्दू भाषा आपको कैसे लगी। क्या सर, अरे वाह! क्या बात है सर, दिल खुश हो गया सच में आपसे बातचीत करके और मुझे लगता है कि श्रीलंका में जितने भी उर्दू प्रेमी हैं, आपकी बातों से बहुत खुश हो जाएँगे और कहीं न कहीं पे एक कदम तो ज़रूर आगे बढ़ाएँगे उर्दू को लेके, उर्दू सीखने के लिए। अगर किसी ने भी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत भी अगर कोशिश किया, तो फिर उसका जो श्रेय है वो आप ही को मिलेगा सर, क्योंकि आप ही लोगों ने हमको इतना पढ़ाया, इतना समय दिया, इतना हमने हमारे सवालों का जवाब दिया हर पल, तो इन्हीं आप ही लोगों के दुआओं की वजह से ये सब कुछ चल रहा है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर, पूरे श्रीलंका वासियों की तरफ से आपका शुक्रगुज़ार है सर हम। सच्ची बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपने मुझे वक़्त दिया और बात की। जी, जी। थैंक यू। थैंक यू सर।